Good morning, students. Yesterday we have started exercise 6.3 and we have done few questions of it. So let us do some more questions of this exercise. This is the 8th question. You have to solve these inequalities graphically. So convert the first one in the form of an equation. We get x plus y is equal to 9. We will first find 2 points on the line. So we put x equal to 0, then we get y equal to 9. And when we put y equal to 0, we get x equal to 9. So we got 2 points. So we will draw these points on the graph. 0, 9 is this point on the y-axis and 9, 0 is the point on the x-axis. When we join it, we will get this line. Now since it is a slack inequality, we have less than as well as equal to sign. So we will draw this complete line, that is dark line. And now we have to find the solution of this inequality. So we will check whether the lower half plane is its solution or the upper half plane is its solution. So since this line is not passing through the origin, we can put 0, 0 in the given inequality to check whether it satisfies it or not. When you put 0, 0, we will get 0 less than equal to 9, and which is true. It means the lower half plane, this one is the solution of this inequality. हमने एरो मार्क करा है कि इसका solution इस lower side में है. The second one is y greater than x, so corresponding equation is y equal to x. So we find 2 points, when x is 0, y is 0, when x is 2, y is 2. So we plot these 2 points 0, 0, 2, 2. When we join it, we get this line. Now since it is strict inequality, this line we have drawn as the dotted line. Now since this line is now passing through the origin, so to find its solution we cannot put 0, 0 in it. So we will take any point in either any point of this lower half plane or any point of the upper half plane to determine its solution. So let us take this point 2, 0. When you put 2, 0 here, x is 2 and y is 0, we get 0 greater than 2. But it is false. It means its shading is not towards this side which contains this point 2, 0, but in the opposite side. So the solution of this second inequality is the upper half plane. And the third one is x greater than equal to 0. तो x पॉजिटिव कहाँ होता है? y एक्सिस के राइट साइड में. तो x इक्वल टू 0 तो मतलब y एक्सिस हो गई हमारी, और शेडिंग कहाँ होगी? राइट साइड में, क्योंकि इसी साइड पॉजिटिव होता है, y एक्सिस के लेफ्ट में तो नेगेटिव होता है x. सो इसकी शेडिंग यहाँ हो गई इस साइड. तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, दैट इज दिस शेडेड डार्क शेडेड पार्ट is the common portion of all the three shading solutions of all the three inequalities. So this is the solution of these inequalities. So next one is 2x plus y greater than equal to 4, x plus y less than equal to 3 and 2x minus 3y less than equal to 6. तो यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे. 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. अब 2 पॉइंट्स निकालेंगे लाइन पर. एक बार x को 0 रखा तो y 4 आ गया, y को 0 रखेंगे तो x 2 आ गया. इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो 0, 4 y एक्सिस का ये पॉइंट आ गया और 2, 0 x एक्सिस का ये पॉइंट आ गया. इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी. अब इसकी शेडिंग देखने, इसका सोल्यूशन कौन सा होगा, कौन सा हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम 0, 0 रख के देखेंगे. तो 0, 0 रखने से आपको मिलेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4.
जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब फॉल्स है, इसलिए हम इसकी शेडिंग ओरिजिन की साइड नहीं करेंगे बट अपोजिट साइड करेंगे। तो इसकी शेडिंग बाहर की साइड होगी, मीन्स अब राइट साइड का जो हाफ प्लेन है वो इसका सोल्यूशन होगा। फिर सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x x प्लस वाई इक्वल टू 3 बन जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। पॉइंट्स निकालेंगे तो 0, x को 0 रखा y3 और y को 0 रखेंगे तो x3 आ गया। ये पॉइंट 0, 3 हो गया हमारा, और ये हमारा एक्स एक्सिस के पे 3, 0 पॉइंट है। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। लाइन जब ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जरूर लिखेंगे सभी बच्चे। अब इसका सोल्यूशन देखना है कि कौन सा हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा हमारा। तो हम 0, 0 रखेंगे इसमें, और 0, 0 सेकेंड इनइक्वलिटी को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, सो इसकी शेडिंग ओरिजिन की साइड होगी। तो सेकेंड वाली लाइन की शेडिंग ओरिजिन की साइड होगी, ये इस साइड होगी हमारी। थर्ड है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स निकालेंगे तो x को 0 तो y माइनस 2, y को 0 रखेंगे तो x3 आ जाएगा। यहाँ पर 0 माइनस 2 ये पॉइंट आ गया हमारा नेगेटिव y एक्सिस पर, और 3, 0 इस एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो गया। इसको ज्वाइन करके हमें ये लाइन मिल गई, थर्ड लाइन। अब देखना है कि ये और 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो क्योंकि हमारी इनइक्वलिटी थी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो 0, 0 जब रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो ट्रू है। इसका मतलब इसकी शेडिंग ओरिजिन की साइड होगी। इसका जो हाफ प्लेन होगा, इसका जो सोल्यूशन है थर्ड इनइक्वलिटी का, वो अपर हाफ प्लेन होगा, ये अपर साइड में होगा। अब हम देख रहे हैं इसका ऊपर आ रहा था शेडिंग, इसका अंदर आ रहा था, बाहर की साइड आ रहा था, और इसका अंदर की साइड। तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये ट्राइंगल है, इसलिए ये हमारा इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।